Once again, good afternoon to all of you. Let us start the class for the day. We have with us today the participants, and let us start this class where we are reading about mathematical tools, right? So, yes, all right. So, let us have a recap of what we had read in the last class. Who can give the one? Raise your hand. Who can give a quick recap of whatever we had read in the last class? Okay, so Shrish, everybody should be able to, right? Because everybody is making notes. So everyone should be able to. Yes. Let me select any one. So there are Shrish, Amish, and Kartikeya who have raised hands. All right. Let us take it from Shrish this time. Yes, Shrish, go ahead. Sir, in the last class, we studied about the mathematical tools, how to find angles, Mm-hmm. and also about the angle measurements. We measure the angle in degree, radians, minutes, and seconds. Angle measurements in degrees, Radians, minutes, and seconds. radians, मिनट्स एंड सेकेंड. ठीक है, और बोलो बच्चा. And so we also studied about that progressions, or arithmetic progressions and geometric progressions. AP, that is arithmetic progression. GP, that is geometric progression. Yes. What next? And sir, the formula for sum of n natural numbers. Sum of n natural numbers. All right. Next was. So that's it. ठीक है. अच्छा, आज हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज, हेडिंग देंगे सब लोग, बाइनोमियल थ्योरम. कुछ और छूट तो नहीं रहा है? एनीवन? हाँ कुशल बोलो. सर एक वो वाला रह गया था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. So had I made you all write it? नहीं. Okay. लिख लो everyone. Sum of squares of sum of squares of first n natural numbers, that is, you're being asked 1 square plus 2 square plus 3 square and so on till n square. हाँ कुशल बोलो. इसकी वैल्यू जानते हो? हाँ हाँ बच्चा बोलो. नहीं पता. Okay, इसकी वैल्यू is given as, any ideas? आप लोगों ने अपने मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ा है क्या? Any one of you? Raise hands if you know. देखो, इसके लिए although you have a derivation, right, but then we are covering here only as much is important, right? So you have, इसके लिखो, यहाँ तक लिख लिया सबने, sum of first n natural numbers, that is 1 square plus 2 square plus 3 square and so on till n square. मतलब हम कोई भी एक n number ले लेते हैं, right? It is given by n into, everyone write it down, n into n plus 1 into 2n plus 1 whole by 6. It is not very much frequently used, but अगर कहीं यूज आएगा तो आपको याद रहे, right? इसे एक ब्रैकेट में डाल दो और इस तरह के सारे फॉर्मूला जो हम लिख रहे हैं, right, all of this should go in your formula copy, right? All right. So once this is done, let us write the heading binomial theorem. क्या होता है देखो, बाय मतलब टू, राइट?
सो दो टर्म्स को एक्सपैंड करने के लिए, दो टर्म्स से जुड़ा हुआ एक ऐसा फॉर्मूला जिसको आप एक्सपैंड करना चाहते हैं इज कॉल्ड एज बाइनोमियल थ्योरम. इसको जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है आप अपनी क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ फिजिक्स के लिए उसका जितना एप्लीकेशन जरूरी है मैं उसे यहाँ लिख रहा हूँ. हैव अ लुक. हम जो एप्लीकेशंस देखेंगे, सपोज अगर हमारे पास कहीं ऐसा टर्म आता है 1 plus x to the power n, right, such that if x की value, right, is very less than 1, extremely smaller than 1, then this expression becomes 1 plus nx. मतलब देखो हमने क्या किया, n को, यहाँ जो n है इसे x के सामने लिया है, right? This is what we have done. लिख लीजिए सभी लोग, write it down. एग्जाम्पल के लिए, सपोज यू हैव अ टर्म as 1 plus 0.0004 whole to the power 100, or let's say a smaller number 6, right? So any one of you, देखो क्या होगा, लेटर वी I'll ask, है ना? तो सब क्या होगा देखो, यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं चेक करोगे. फॉर्म कैसा है, 1 plus x, right, to the power of n such that x is equal to 0.0004, right? And here for us n value is 6, so you will write 6. देखो क्या हो रहा है, n कहाँ जा रहा है, x के पहले, right, मल्टीप्लाई हो जा रहा है, so you write 1 plus 6 into 0.0004, right? Later you will write 1 plus 0.0024, correct? So you'll get 1.0024 as the answer. Clear हुआ क्या सबको ये? Is this point clear? Right? Suppose अब मैं आपसे कहूं इसी तरह से 1 plus 1 by 400 raised to the power 9. कोई ट्राई करके देखो. So let me take another number here. Let us take 24. Okay. कोई ट्राई करना चाहेगा? Anyone? वीरज. वीरज बताओ इसका आंसर कैसे निकलना चाहिए, क्या करोगे इसको? यस, गो अहेड. तो 1 plus 24 into 1 by 400. इजी था, राइट? Yes. बोलो कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे? तो इसका आंसर आएगा, देखो वेरीफाई करो. 1 plus 3 by 50. राइट, या फिर क्या लिख सकते हो, 6 by 100, क्योंकि 6 by 100 कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है, राइट? Yes, sir. लिखा आपने, सभी लोगों ने अपने पास लिखा. वीरज क्लियर हुआ एग्जाम्पल? वीरज क्लियर हुआ एग्जाम्पल? Yes, sir. Okay. Class, everybody clear with this example? Anybody with any query, raise your hand. Thank you, Viraj, right? Okay. Anyone with any queries, raise your hand. Let me know. ठीक है. Okay. So we'll take another example. Suppose you have question given as 4 by 4 plus, or I'll give you one question, right? इसको सबको try करना है. Everybody has to try this. 4 by 4 plus 0.006 raised to the power of 4, and let us here also raised to the power of 4. इसको कैसे सॉल्व करोगे? ट्राई करो सब लोग. आपके पास 1 मिनट का समय है. It's 119 until 120. Let's see अगर सॉल्व कर पाते हो क्या. सॉल्व करो and raise your hand. Yes, get going. सेम फंडा लगाना है, ठीक है? सेम फंडा लगाना है जो अभी हमने लगाया ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम. एवरीबॉडी मेक श्योर यू पुट दिस इन अ ब्रैकेट और इनबॉक्स इट, सो दैट जब भी नेक्स्ट टाइम यूज करो अपनी कॉपी को सबसे पहले इस पे नजर जाए. यस क्लास, गो अहेड.
All right. So it's 1:20 now. Take 1 minute grace and solve. Take 1 minute grace and if you have solved, एक बार दोबारा चेक कर लो. हड़बड़ी में जवाब नहीं देना है, ठीक है? दोबारा चेक कर लो. और अगर नहीं भी बता पाते हो तो कोई बात नहीं, अप्रोच हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले. आंसर से ज्यादा अप्रोच अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? Okay, it's 1:21. Let's see if you all have tried. Okay, Kartikeya has raised hand, but I want to know everybody's approach. So Mahivesh, in case mic is not working properly, आप मुझे आपका एक लाइन में approach type करके भेजिए. We'll start from any one of you. Let us start from Rahul. Okay, Rahul, Viraj, Shrish, Amish, Kushal, right? And one by one, everyone and Kartikeya will tell their answers. Let's start it from Rahul. Yes, Rahul. और जिनका बन गया वो हैंड रेज रखेंगे, ठीक है? हाँ राहुल बोलो, अप्रोच बोलो, कैसे लगता है, क्या हो लगता है ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? सर एक कॉमन ब्रैकेट दोनों के लिए बना लेंगे और स्प्लिट कर लेंगे 4/4 प्लस 4/0.006 करके. देखो, और यहाँ पर मुझे बताओ, स्टेप बाय स्टेप बोलो, वन बाय वन. पहले क्या करना चाहिए? सर 4/4 1 लिखिए. 4/4. देखो 4/4 को जस्ट का तस रहने देते हैं. मुझे बताओ सबसे पहले कि राहुल एक बात बताओ, क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन में है? क्या ये बाइनोमियल फॉर्म में है? क्या इस फॉर्म में है? क्या ये 1 + x लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? पहले बताओ, ऐसा कुछ लिखा है क्या? यस सर. अरे यस कैसे? देखो ये तो 4 + समथिंग लिखा हुआ है, 1 + समथिंग तो नहीं लिखा. नो सर. नो सर. राइट, नो. तो अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सोचो, यहां से अगर मैं 4 कॉमन निकाल दूं, निकालना आता है सबको कॉमन. जैसे देखो, अगर आपके पास a + b, राइट, ऐसा लिखा हुआ है, और अगर आप इस एक्सप्रेशन में से a कॉमन निकालना चाहते हो, राइट, और यहाँ पावर में c है, तो कैसे निकलता है कॉमन? देखो सभी लोग, कॉमन निकालने का तरीका, ऑल्दो आप लोग 9th-10th में पढ़े हो, बट स्टिल देखो, a कॉमन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? 1. और a कहाँ आ जाएगा? सेकेंड टर्म में, b के नीचे, राइट? इसी को बोलेंगे कॉमन निकालना. वंस यू हैव टेकन a एज कॉमन, अब ये जो c है जो न्यूमरेटर में था, ये दोनों में कैसा हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट? दोनों के पावर में आएगा. सो यू विल हैव a पावर c into 1 + b/a⁴ c. क्लियर हो रहा है ये? अब इफ यहां जो हमने देखा, यानी कि b/a, अगर ये पूरी वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटी है, तब मैं क्या कर सकता हूं? तब मैं c को कहां रख सकता हूं? अंदर ले आ सकता हूं, ब्रैकेट के. तो वही करते हैं. देखो, अगर b/a बहुत छोटा है तो a पार c को जस्ट का तस बाहर रहने देते हैं, और अंदर क्या हो जाएगा? 1 + c टाइम्स ऑफ b/a, और यहाँ a पार c बाहर ही रहेगा. ये जो मैंने अप्रोच बताई, अब राहुल इस अप्रोच को देखो गौर से, मैंने क्या किया, राइट? और इसके बेसिस पे इसी क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करने की कोशिश करो. यस, क्या होना चाहिए बताओ? नीचे से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 4. ओके, चलो ठीक है, वैसे ही करते हैं. लेट अस टेक 4 कॉमन. सिर्फ 4 आएगा या 4/4 कॉमन आएगा? 4/4. 4/4. क्यों? जैसे देखो, जब पहले आपने इसको कॉमन निकाला तो ये जो पावर है ये इस पूरे एक्सप्रेशन पे है, तो इसीलिए पहले 4 कॉमन आया. ऑल्दो 4 कॉमन आया, लेकिन ये 4 इस अंदर वाले ब्रैकेट से कॉमन आया, राइट? सो यू हैव दिस एंटायर एक्सप्रेशन टू द पावर ऑफ 4. अब क्या होगा यहां पर? ऐसा. सर वो 4 जो है. अब नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो बच्चा, क्या हो जाएगा? 4/4 टाइम्स ऑफ 1 + 0.006 टू द पावर ऑफ 4, राइट? यस सर. अच्छा, अब क्या 4 आंसर है क्या? हाँ, यस सर. करेक्ट.
अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, ध्यान से देखना, ठीक है। 1/1 प्लस 0.006 टू द पावर ऑफ 4, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, लेट मी नाउ टेक द आंसर फ्रॉम श्रीश। श्रीश बच्चा, क्या इस एक्सप्रेशन को जो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, क्या ऐसे ही एक्सपैंड कर दूं, या फिर शुड आई टेक इट दिस वे? देखो श्रीश, 1/a टू द पावर ऑफ 9, मैं इसमें a को अगर ऊपर लाना चाहूं तो उसका कुछ प्रोसेस होता है क्या बच्चा? श्रीश सोच के सर बता। पावर नेगेटिव हो जाता है। पावर नेगेटिव हो जाता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सभी लोग देखेंगे, वेरी गुड बच्चा। देखो सभी लोग यहाँ पर, कि हमारे पास अगर कहीं ऐसा दिया हुआ है 1/a पावर 9, तो इसकी क्या वैल्यू होती है? a पावर -9, राइट। सो लेट अस डू दैट। 1/a पावर -9 क्या हो जाएगा ऑप्शन में? बताओ यहाँ पर क्या ट्रायल होना चाहिए? इसी तरह से जैसा ये होता है, ठीक वैसे ही इस जगह पर अगर इसका हम एप्लीकेशन देखें तो यहाँ क्या होना चाहिए इन द क्वेश्चन? 1 minus 4 into 0.006. पहले वो बाद में, पहले इसको ऊपर ले जाओ। 0.006 टू द पावर टू द पावर ऑफ -4 या +4? -4। -4. Absolutely correct. कोई एक इंसान, one at a time, right? So now let us take from, so I think first was Rahul, then Shrish. Now let us take from Kartikeya and Amish one by one. हाँ, so कार्तिकेय आगे क्या होना चाहिए इसमें बताओ? इसको किस फॉर्म से पहले कंपेयर करोगे? हाँ कार्तिकेय बोलो। सर 1 plus x to the power n. तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे 1 plus x raised to the power n से, जो हो जाता है 1 plus कितना हो जाता है बोलो? nx, हाँ या ना? Yes sir. और ऐसा कब होता है? जब x कैसा है 1 से? बहुत बड़ा या बहुत छोटा? छोटा। बहुत छोटा। और देखो यहाँ पर सभी लोग गौर करो, ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है वो 0.006, दिस वैल्यू इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये बात समझ में आनी चाहिए, राइट? तो क्या हो जाएगा आंसर? अब नेक्स्ट स्टेप बोलो अमीश। हाँ अमीश, नेक्स्ट स्टेप बोलो। सर एक डाउट था सर, वहाँ 4 कॉमनली है तो 0.06 के नीचे भी डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए ना? हाँ हाँ, यस, एक्सीलेंट बच्चा, एक्सीलेंट फॉर द ऑब्जर्वेशन, राइट। तो अब क्या करोगे बताओ? -4 कहाँ ले आओगे? सर मल्टीप्लिकेशन 1 plus nx हो जाएगा, मतलब -4 into 0.006। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्या हो जाएगा? -4 into 0.006 by 4. So we have 4 and 4 gets cancelled. You have 0.994. हाँ या ना? क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा क्लास, ये अप्रोच सभी को क्लियर है? एवरीवन, जो हमने यहाँ पर देखा, आपको यहाँ पर मैंने अप्रोच बताया ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अच्छा, अब जिन जिन को कोई डाउट पूछना हो इस क्वेश्चन में, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, सो आई हैव 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, 1 by 1। ओके, हाँ कार्तिकेय पूछो। ओके, कार्तिकेय इज डन। हाँ कुशल पूछो। सर आपने जैसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में उसको कन्वर्ट किया, मैंने उसको डिनोमिनेटर में सॉल्व कर दिया था। आंसर आ रहा है? हाँ, मेरा आंसर 1.006 आ रहा है। अरे देखो कैसे होगा, चेक करो, रीचेक करो एक बार कुशल आंसर, एक बार अपनी अप्रोच दोबारा चेक कर लो। मैंने डिनोमिनेटर में सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ रहा है 1.006 4 to the power -1। देखो देखो देखो, हमने यहाँ तक लिया, राइट। अब डिनोमिनेटर में कैसे सॉल्व करोगे? देखो ऐसे ही होगा, राइट कुशल? यस सर। पावर कितना हो गया? 1,
राइट? Yes, sir. अभी न्यूमरेटर में जाके कितना हो जाएगा पावर, बोलो? -1. हाँ, अब क्या ये इस फॉर्म में है? चेक करो, इस फॉर्म में है क्या ये? क्या x Yes. इज वेरी वेरी लेस? तो ले जाओ इसको अंदर, ले जा सकते हैं ऐसा? Yes, sir. देखो आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा। Yes, sir. अच्छा देखो यहाँ भी हमने यही लाया था, हाँ या ना? Yes, क्लियर sir. हुआ? तो चाहे आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाके बाद में उसको एक्सपैंड करो या उसको पहले एक्सपैंड करो, दोनों ही केसेस में आंसर कैसा आना चाहिए? सेम, और आ भी रहा है। क्लियर है अब कुशल? Yes, sir. ठीक है। एंड सर अगर वहाँ पे वैल्यू 0.6 होती तो फिर उसको चेंज करते क्या? देखो 0.6, 0.61 से कितना छोटा है बताओ? 0.4 छोटा है, हाँ या ना? यस सर. अब ये 0.41 का कितना परसेंट है ये बताओ, बोलो? 40%. 40. 40%। तो क्या ये वैल्यू वेरी स्मॉल हुई या वेरी लार्ज हुई? लार्ज. वेरी लार्ज। देखो जब भी कभी आप ऐसे परसेंटेज की बात करते हो ना, जैसे 1%, 0.5% या फिर आप बात करो 0.005%, इन वैल्यूज को हम बोलते हैं वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज, या फिर लेट्स से 5%, मैक्सिमम 7%। जैसे ही बात 10% एंड अबव की होने लगती है ना, ये सब लार्ज वैल्यूज काउंट की जाती हैं। आई विल रिपीट व्हाट आई एम सेइंग दैट कि अगर हमारे पास 1 प्लस कोई क्वांटिटी है, लेट्स से हम यहाँ एक एक करके लिखते हैं, ठीक है? 0.1 या फिर शुरुआत करते हैं 0.0001 से, फिर एक क्वांटिटी है 0.001, फिर एक क्वांटिटी है 1.01, फिर एक क्वांटिटी है 1.1, फिर एक क्वांटिटी है 1+1। ठीक है, अब हम इनका पावर ले रहे हैं, देखो टू द पावर ऑफ 5, ठीक है, टू द पावर ऑफ 5, टू द पावर ऑफ 5, टू द पावर ऑफ 5, टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, अब मैं ये वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहता हूं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फंडा इज कि whenever we have 1 plus x to the power of n, कंडीशन क्या है कि x should be very very less than 1। very very less क्या होता है? तो very very less ये होता है कि जब भी कभी कोई वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू का 1% या 5% एंड लेस है तो उसको आप कहते हो वेरी वेरी लेस। तो 5% एंड लेस। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला में देखो, क्या यहाँ पर 1 इज वेरी वेरी लेस देन 1 या फिर 1 इज इक्वल टू 1? हाँ कुशल बोलो। इक्वल टू 1. इक्वल टू 1। तो क्या यहाँ पे बायनोमियल लग सकता है क्या? नो सर. जो हमने देखा है वो बायनोमियल का अप्रोक्सीमेशन नहीं लग सकता। ठीक है, यहां बताओ ये जो 0.1 है, ये जो 0.1 है, ये 1 का कितना, ये 1 से कितना परसेंट लेस है या 1 का कितना परसेंट है? 10%. 10% है, राइट? सो एक मिनट, I'll write this here। 10%, 10% 5 से ज्यादा है कि कम? ज्यादा है. ज्यादा है, राइट? तो क्या हम यहाँ पे बायनोमियल लगा सकते हैं क्या? हाँ सर. बायनोमियल कब लगा सकते हैं? जब ये जो x है, दिस x should be less, should be equal to 5% or less than 1। I will write here as a note, x must be 5% or less of 1। क्लियर हो रहा है, राइट? अच्छा, अब इसके लिए ट्राई करो कुशल, इसके ऊपर वाले के लिए, ये वाला बताओ 0.011 का कितना परसेंट है? 1%. 1% है। इज 1% लेस देन 5? यस सर. यस, इसीलिए यहाँ बायनोमियल लग सकता है क्या? यस सर. हाँ, तो अब बायनोमियल लगाओ, क्या हो जाएगा? 0.01
ये कंडीशन का चेक है हम जो यहाँ पर कर रहे हैं. दिस इज चेक ऑफ द कंडीशन. चेक ऑफ कंडीशन. लगाओ कंडीशन कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.01 टू द पावर ऑफ 5. क्या हो जाएगी वैल्यू बोलो. 1 plus 0.05. 1 plus 0.05 which gives you 1.0. क्लियर हुआ कुशल ये वाला पॉइंट Yes sir. कि कहां पर यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं है, बट क्या अच्छा ये वाली वैल्यूज बोलो कितनी वैल्यू होगी. 0.001 1 का कितना परसेंट है. 0.1%. 0.1% है. तो अब ये 1 का 0.1% है. इज 0.1% लेस देन 5%. Yes sir. यस. तो क्या बायनोमियल थ्योरम यहाँ पे हम लगा सकते हैं. Yes sir. यस. अब बताओ क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू. 1 प्लस 0.005 राइट. दैट विल बी इक्वल टू 1.005. क्लियर है क्या कुशल. Yes sir. ऑलराइट ठीक है. अच्छा नेक्स्ट वन. सो लेट अस टेक द डाउट बाय राहुल. हाँ राहुल बोलो. सर वो जो पहला वाला क्वेश्चन था वो 4 to the power 4 वाला, उसमें हाँ. मेरा दूसरा अप्रोच था एक्चुअली. हाँ हाँ सर उसमें जो पावर 4 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी है, तो उसको कॉमन लेके स्प्लिट अगर कर देंगे तो वैसे भी हो सकता है ना. देखो एक क्वेश्चन को मैंने पहले भी कहा है सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं. प्रोवाइडेड आपकी अप्रोच सही हो और आपका आंसर आ रहा हो तो वी कैन वेरीफाई कि आंसर सही है कि नहीं. बिकॉज इट इज मैथमेटिकल प्रोसीजर. सो रादर देन स्पीकिंग इट आउट आप मुझे इसको सॉल्व करके ग्रुप पर भेजो एंड लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास. आई टेल यू द अप्रोच इज राइट और रॉन्ग. राइट. या आप अभी भेज सकते हो क्लास के बाद बट राइट. ठीक है. ओके सर. सर और एक डाउट था. हाँ हाँ बोलो बोलो. सर वो जो 1 plus x to the power n है, उसमें हमेशा x के पहले 1 ही रहना चाहिए कि 2 या 3 कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी वैल्यू. सिर्फ 1. इसीलिए तो हमने देखो इसको 1 बनाया. अगर 2 और 3 रह सकता था तो हम यहाँ पे 2 और 3 रहने देते. क्योंकि देखो ओरिजिनली जो क्वेश्चन दिया था यहाँ तो 4 था राइट. लेकिन हमने क्या कहा इस केस में बायनोमियल एप्लीकेबल नहीं है. देखो इसीलिए तो मैंने ये वाला फॉर्म लाया. क्लियर हो रहा है. मैंने यहाँ 1 वाला फॉर्म लाया ही इसीलिए क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n की बात कर रहे हैं. क्लियर है क्या. आप लोग बायनोमियल को और अच्छे से पढ़ोगे जहां पर एक्चुअली बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. लेकिन उसका एक्सपेंशन अगर किसी एक खास कंडीशन पे किया जाए और वो कंडीशन अगर ये होती है देन दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है क्या बच्चा. यस सर. ठीक है. क्लियर हुआ. डाउट क्लियर हुआ कि यहाँ 4 नहीं आ सकता एक्सपैंड करने के लिए. इसीलिए तो मैंने यहाँ पर 1 बनाने की कोशिश की है. जो 4 है उसको कॉमन निकाला ताकि अंदर 1 आ सके. क्लियर हो रही है क्या बात बच्चा. यस सर. ठीक है. ऑलराइट क्लास. एनीबॉडी एल्स कुछ पूछना है लेट मी नो. ठीक है. सो नाउ लेट अस मूव टू द next concept. right. next concept is about आप लोगों ने ग्राफ्स के बारे में मैंने क्लास में कवर किया है क्या. क्लास have I covered graphs? No sir. okay then let's see the graphs one by one. ये ना आपके पूरे फिजिक्स का सिलेबस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा बिकॉज आप ग्राफ्स को विजुअलाइज बड़ी आसानी से कर सकते हैं. राइट. सो ग्राफ क्या है. राइट. ग्राफ इज बेसिकली हमने 2 एक्सिस ले ली. राइट. इनिशियली आपको 9th-10th में कैसे सिखाया जाता है. आपने 2 एक्सिस ले ली y और x. अगर सपोज अब इसको मैं कहता हूँ xy प्लेन. क्या कहता हूँ xy प्लेन. तो इस xy प्लेन में हमारे पास क्या आता है अलग अलग सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं. राइट. और हर पॉइंट की जो लोकेशन है वो कहलाती है उसके कोऑर्डिनेट्स. क्या कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स. तो अपने पास नोट लिखो. एवरीबॉडी राइट द नोट. location of a point on graph is called are called its coordinates.
सभी लोग लिखो इट्स कोऑर्डिनेट्स। लिखा सबने? अब जैसे अगर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, लेट्स से दैट पॉइंट इज P, ठीक है, आई टेक इट एज A, B। तो इस A, B का क्या मतलब है? इस A, B का मतलब है कि हम लोग अगर इस पॉइंट को देखना चाहते हैं, ये एक्स एक्सिस के अलोंग, ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से कितना दूर है, अलोंग द एक्स एक्सिस ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, देन दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी A। अगर आप ये देखना चाहते हो कि ये पॉइंट y एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से कितना दूर है, तो इस वैल्यू को हम कहते हैं B। What is A? I will repeat, यहाँ लिखो, the coordinates are ये हमने अब पहले भी पढ़ा था, याद करो, किसमें? वेक्टर्स में। क्या पढ़ा था कि दिस A is called as x coordinate in the given question, right? Then you have another point called as B, which is y coordinate। लिखो सब लोग। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफ में ऑल्दो आप लोग अलग अलग तरह के ग्राफ्स पढ़ेंगे, राइट? सपोज अभी मैं इन दो पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, 0,0 और यहाँ पर पॉइंट है A, B, राइट? तो सपोज अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स होते हैं, देखना ध्यान से, राइट? अभी तक हमने सपोज सिर्फ दो एक्सेस की बात की थी। सपोज अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लेन की जहां पर, एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम की जहां पर मोर देन 2 एक्सेस है। सो सपोज 3 एक्सेस है, लेट देम बी, ये हुई x, दिस इज y, while this is z, ठीक है? नाउ लेट अस टेक 2 पॉइंट्स इन दिस एंटायर 3D फिगर, ठीक है? एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। नाउ if you take the coordinates of the point P as x1, y1, z1 and coordinates of the point Q as x2, y2, z2, ठीक है? Then if you want to measure the distance between P and Q, that is the length of the line PQ, suppose you call this line as, let's simply call it as PQ, ठीक है? Or maybe let us say this time this line as, we'll name it as alpha। तो इस अल्फा लेंथ की क्या वैल्यू हो जाएगी, या एल ले लो, इवन सिंपलर। इस एल लेंथ की क्या वैल्यू हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ, एवरीबॉडी राइट इट डाउन, अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square, right? So this is giving you the distance between any two points in the x, y, z system। यहाँ लिख लो, हेडिंग में लिख लो, distance between any two points in the x, y, z system। अच्छा, अगर सपोज z ना हो तो कुछ नहीं, बस ये वाला टर्म कट जाएगा, राइट? z वाले टर्म कट जाएंगे अगर z सिर्फ एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो, ठीक है? आई होप दैट एनालॉजी इज वेरी क्लियर। z दिया है तो z डालोगे, z नहीं दिया है तो z नहीं डालोगे। एग्जाम्पल देखिए, एवरीबॉडी एक एग्जाम्पल सॉल्व करो और मुझे बताओ, फाइंड आउट। हाँ हाँ, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। फाइंड आउट
distance between okay, I'll wait for a while. फॉर्मूला लिख लो सभी लोग. ये लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है. So write this down everyone. Find the distance between कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है? 1, -1 and 6, 0, -1, 0, 0 and 1, 5, 1. Right? Then you have 0, 0 and -1, 1, ट्राई करो सभी लोग. हाँ, so let us start off with the approach from one of you. So हाँ, महिवेश आज आपका माइक काम कर रहा है बच्चा? यस सर. हाँ महिवेश. So ट्राई करो, बोलो क्या होने चाहिए आंसर्स. अप्रोच फिर सोल्यूशन पे आएंगे. ठीक है. सपोज हम पहले वाले के लेंथ को बोलते हैं L1. हाँ, बोलो क्या होना चाहिए आंसर. अप्रोच बोलना. सर अंडर रूट ऑफ हाँ. x2 minus x1 that is 6 minus 1 whole square plus y2 minus y1 is 0 minus of minus 1 which will become 0 plus 1 whole square. ओके, क्या हो जाएगी वैल्यू बोलो. So 5 square plus 0 square plus 5 square plus 1 square. ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो. 26 अंडर रूट. राइट. 2600. Yes sir. Okay, great, excellent bachcho. Now let us take the second one. So let me now take the answer from Amish. हाँ Amish बोलो. इसके बाद कार्तिकेय आप बोलना. ठीक है, नेक्स्ट वाला. ओके हाँ अमीश बताओ. क्वेश्चन नंबर. The distance between the 2 points will be equals to root over 1 plus 1 whole square plus 5 minus 0 whole square plus 1 minus 0 whole square, which will be equals to एक करके like let everybody also absorb. सिर्फ बोलना नहीं है, आप जैसे जैसे बोल रहे हो आई विल बी राइटिंग हियर. और मीनवाइल आपको ऐसा मतलब आपको सिर्फ ये नहीं बताना है कि आपने सॉल्व कर लिया, आपको बताते हुए आसपास वालों की चैलेंज को खत्म कर देना है. मतलब आपको आसपास वालों को भी समझा देना है. राइट. हाँ गो है, धीरे धीरे बोलो क्या बोल रहे हो. हाँ root over 1 that is 1 minus 1 हाँ whole square plus 5 minus 0 whole square 5 minus 0 whole square plus 1 minus 0 whole square 1 minus 0 whole square. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा. अब ये क्या हो जाएगा. 1 minus minus 1 कितना हो जाएगा. 1 plus 1 2 whole square that is 4. राइट. yes ऐसा बोलो. हाँ नेक्स्ट बोलो. so then 5 square it's 25 ठीक. and 1 square is 1 ठीक है. that will give you how much. under root of 30. Absolutely correct. So here the distance between these 2 points -1 0 0 and 1 5 1 is equal to root of 30. क्लियर हो रहा है सबको. राइट. क्लियर हुआ आपको बच्चा. अमीश ठीक है. yes sir. All right, let us take next one from Kartikeya. हाँ कार्तिकेय बोलो. The under root
-1 - 0 whole square -1 - 0 whole square. Okay. plus 1 - 0 whole square 1 - 0 whole square plus -1 plus 0 whole square. प्लस -1 - 0 होल स्क्वायर. मुझे एक बात बताओ, यहाँ तो जीरो दिया ही नहीं है, तो आपने कैसे लिया कि ये वाला पॉइंट जीरो ही होगा? Sir, assuming to be 0. हमने ये अज्यूम किया कि ये पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है. तो कई बार जरूरी नहीं है आपको इनफैक्ट ये भी दिया जाए, हो सकता है सिर्फ कह दे आप ओरिजिन से पॉइंट निकालिए, राइट, एंड देन यू माइट गेट दिस आंसर. हाँ बोलो कितना आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 1 square +1 1 plus 1 कितना आ जाएगा आंसर? इक्वल टू √3. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा लोग, एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरीफाई कर लो सभी लोग अपने आंसर, राइट. एनीवन रिमेन्स? रेज योर हैंड. कोई बचा? सो दैट आई विल वेट. Sir, doubt. हाँ हाँ बोलो. सर अभी आपने बोला जो ओरिजिन जो अगर 0 नहीं दिया तो फिर कैसे अज्यूम करते हैं उसको? जीरो नहीं दिया है मतलब, देखो मैंने किस तरह का क्वेश्चन कहा. सपोज आपको ऐसा दिया जा रहा है, ओरिजिन एंड -1, -1, -1 के बीच में अगर आपको कहा जाए फाइंड आउट द आंसर और द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दैट इज हाउ वी आर टेकिंग इट. ओके सर. राइट. अगर कुछ ना दिया जाए, कुछ भी ना दिया जाए, या फिर सिर्फ कहा जाए ओरिजिन और ये 0,0 दे दिया जाए, तो ये अंडरस्टूड है कि ओरिजिन पर सभी जीरो होते हैं, राइट. यस सर. ऑलराइट. अगर कहा जाए ओरिजिन, देखो मैं क्या कह रहा हूं, कहा जाए ओरिजिन और लिखा जाए सिर्फ 0,0, ऐसे केस में आप मान लोगे कि तीसरा भी कोऑर्डिनेट कैसा है? 0. क्लियर है बच्चा? राइट सर. राइट. ओके. नेक्स्ट वन देखो एवरीवन. अगला पॉइंट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं. द पॉइंट इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्राफ्स, है ना. तो ग्राफ्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ स्ट्रेट लाइन. कोई जानता है क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? हैंड रेज करो. Anyone who knows what is the equation of a straight line? Yes. Okay. We have Veeraj and Kushal. हाँ एक एक करके दोनों ही बोलो, one by one. हाँ वीरज बोलो. So x is directly proportional to y. Okay. ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल है. x is directly proportional to y और y is directly proportional to x. ठीक है, ये एक टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. हाँ कुशल बोलो. y is equals to mx plus c. y is equal to mx plus c. ठीक है, ये भी बिल्कुल है, राइट. एनी अदर आंसर्स? हाँ कार्तिक है बोलो. नो सर, सेम. y is equal to mx plus c. ठीक है. अब ना ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस का जनरल फॉर्मेट है जिसको आपने अब तक 9th 10th में या फिर 11th की स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आपको ये बताया गया है, राइट. तो लेट अस टेक दिस एज x axis, this as y axis. Let us draw a straight line here and name it. Let us have it a blue color line, right? अब इस पर हम यहाँ लिखते हैं कि इस लाइन के लिए इक्वेशन है y is equal to mx plus. ठीक है, एक्सप्लेन करो एक एक करके. सबसे पहले कुशल, ये m की क्या वैल्यू है? व्हाट डज m मीन? मीनिंग क्या है m की? m means slope. ओके, क्या होता है स्लोप कुशल? व्हाट डज स्लोप मीन? The degree by which a line is inclined from the x-axis. एब्सोल्युटली करेक्ट. कि अगर कोई एक लाइन एक्स एक्सिस से कितना टर्न पर या कितना स्टीपनेस पर है, उसको मैं कहता हूं स्लोप, राइट. तो इसको सभी लोग अपने पास लिख लो. स्लोप एज अ नोट, स्लोप is steepness of line. Write it down everyone. हेडिंग डालना सभी लोग. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, राइट. steepness of a line
with respect to WRT मतलब with respect to steepness of a line with respect to horizontal axis और x axis को हम क्या कहते हैं? स्लोप. राइट. अब नेक्स्ट वन जिन्होंने जवाब दिया था कार्तिकेय. हाँ कार्तिकेय, बताओ ये सी क्या होता है? सर y axis. Y axis. There are so Sir, it is a sir value where the line cuts the y axis. yes, value where the line Intersection point. cuts y axis. हाँ, क्या बोल रहे हो बच्चा? Sir, intersection point of y axis. Interception point of y axis, और इसको हम कहते हैं y intercept. Absolutely correct बच्चा. सभी लोग इसको लिख लो. y intercept. यहाँ ब्रैकेट में स्लोप के पास m लिख देना, ठीक है? नेक्स्ट वन लिखो y intercept. नोट लिखेंगे सभी लोग. पॉइंट और डिस्टेंस between origin and point. सब लोग अपने माइक म्यूट कर लीजिए. डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन and point where line cuts y-axis, where the line cuts y-axis is called as y-intercept. मतलब this point, ये देखो यहाँ पर ये y-axis को कहाँ कट कर रही है? इस पॉइंट पर. तो यहाँ से लेकर ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एंड y. तो ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? c, राइट. और स्लोप को मेजर करने के लिए हम इस एंगल का यूज करते हैं. सब लोग देखो यहाँ पर ये वाला एंगल. कैसे? देखो अब यहाँ पर आई एम ड्रॉइंग 3 लाइंस, ठीक है? हैव अ लुक एवरीवन. सपोज दिस इज straight horizontal line. Now let us draw 3 lines over it. ये है 1, then we'll have one more line. ये है 2, ठीक है? एक और लाइन लेते हैं, ये है 3. ओके, सो अब मुझे एक एक करके आई विल वांट टू नो कि अगर सपोज मैं इनके जो एंगल्स हैं हॉरिजॉन्टल के साथ उनको नाम दे देता हूँ, या उनके लिए मैं देखो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उनको, ठीक है? सपोज वी हैव दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, राइट? किसके लिए? इन एंगल्स के लिए जो ये कहाँ से बना रही है? हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है, राइट? सपोज दिस इज θ1, राइट? सपोज दिस इज θ2. सपोज the third angle which the red line makes with the horizontal or the x-axis is given as, let's say, θ3, ठीक है? तो अब कौन देखकर ऑब्जर्व करके बता सकता है कि तीनों में से कौन सा थीटा ज्यादा बड़ा है, कौन सा थीटा ज्यादा छोटा है? सिंपल है, राइट? θ3 is greater than θ2 is greater than θ1. ऑब्जर्वेशन से वी आर अंडरस्टैंड. अच्छा, अब सपोज आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए. यहाँ 3 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है? टॉप में. मुझे बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा स्पाइडरमैन स्किल किसको जरूरत पड़ेगी? मतलब अपने आप को यहाँ पर इससे चिपका के रखने की जरूरत किसको सबसे ज्यादा पड़ेगी? किसके नीचे फिसल जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है? तो सपोज लेट मी नेम देम एज this man is called R or red, this man is called G or green, this man is called B or blue. हाँ,
So let me take the answer from Shrish. हाँ, बोलो श्रीश. Sir, The question is red, green और ब्लू में से सबसे ज्यादा स्लाइड होने की टेंडेंसी किसकी है? sir, R. क्यों है? सोच के बताओ. Sir, उसका slope. स्लोप भूल जाओ, अभी स्लोप हमें पता ही नहीं है. सर क्योंकि उसका थीटा सबसे ज्यादा, एंगल सबसे ज्यादा है. एंगल सबसे ज्यादा है. देखो, अगर मैं एक ऐसा सपोज एक हम लोग एक ऐसी राइड पर बैठे हैं. आप सभी लोगों ने गार्डन्स में राइड्स देखी हैं, राइट? सपोज एक ऐसी राइड बन जाए जो तब तक ऊपर उठती जाए जब तक आप फिसल ना जाओ. वो मैक्सिमम एंगल कितना बना सकती है? बोलो विद द हॉरिजॉन्टल. 90 डिग्री. 90, राइट? मतलब इनिशियली वो हॉरिजॉन्टल हो तब एंगल कितना बन रहा होगा? बोलो 0 डिग्री. हाँ या ना? और धीरे धीरे अगर मैं इस राइट को उठाते जाऊं तब तक जब तक यहाँ खड़ा हुआ इंसान नीचे फिसल ना जाए, राइट? तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मिनिमम एंगल कितना हो सकता है विद एक्स एक्सिस? बोलो. सर मिनिमम एंगल 0. 0, राइट? और जब तक ये इस तरह से वर्टिकल ना हो जाए, उस वर्टिकल पोजीशन में मैक्सिमम एंगल कितना हो जाता है? 90. 90 डिग्री, राइट? वर्टिकल पोजीशन का एंगल इज 90 और जब वो हॉरिजॉन्टल पे थी तब एंगल 0. ऑल्दो ये स्लाइड वापस यहाँ भी जा सकती है, हम वो भी केसेस देखेंगे, बट अभी के लिए ये स्लाइड कहाँ जा रही है? यहाँ से उठ रही है एट वन एंड और ऐसा करते हुए ऊपर उठते जा रही है. अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गई? कहाँ पहुंच गई? वर्टिकल, राइट? ठीक है. अच्छा, अब so maximum tendency to slide down is for red. एविडेंट है क्योंकि देखो रेड के लिए जो एंगल था वो सबसे ज्यादा है. देन द एंगल लेसर देन दैट इज फॉर ग्रीन. देन द एंगल लेसर देन दैट इज फॉर ब्लू. जो भी स्क्रीन पर लिखा है लिख लिया सबने? जिसने लिख लिया रेज योर हैंड. Whatever is written on the screen, if you have understood and if you have written in your copies, raise your hands. सर एक मिनट बच्चा. जिन्होंने लिख लिया है, जो भी लिखा है ऑन द स्क्रीन, पहले लिख लो. एवरीबॉडी विल फर्स्ट राइट दिस, राइट? पहले लिख लो एवरीवन. सर कौन से पॉइंट्स को लिखना है? एवरीथिंग व्हाटएवर इज रिटन ऑन द बोर्ड. रनिंग नोट्स सबको बनाने हैं. सर ये डायग्राम भी थीटा वाला भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. यस. जैसे ही okay, I think the network got disconnected, so I'll get the screen once again. Just a minute. Okay, I think the screen is not available. I'll draw the diagram. कोई बचा है क्या लिखने के लिए क्लास? Whatever I've written in the last screen. Anyone who's remaining to write, please raise your hand. Okay. महेश, वीरज एंड कुशल. ओके, देखो हमने क्या किया था. हमने 3 अलग अलग लाइंस बनाई थी, याद तो होगा ही. देखो 3 हमने अलग अलग लाइंस बनाई थी और क्या कहा था कि हमारे पास इन लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, इनका एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 एंगल्स हमने लिए. कौन कौन से? θ3, θ2 एंड θ1, राइट? सो सपोज ये आपका बेस हो गया. हमने अब इस बेस से 3 एंगल्स रिप्रेजेंट कराए. दिस वाज θ1, दिस वाज θ2, दिस एंटायर एंगल वाज θ3. फिर हमने कहा कि y is equal to mx plus c is the equation of the line
where m is called slope and c is called y-intercept. C is called y-intercept, right? Then हमने क्या किया, इसके बाद हमने एक बार जब ये समझा, फिर हमने कहा कि ये स्लोप है क्या बेसिकली, तो हमने स्लोप को डिफाइन किया कि वो एक तरह की स्टीपनेस है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। फिर हमने डिफाइन किया कि c क्या है, y इंटरसेप्ट इज कि अगर कोई एक, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, तो अगर कोई लाइन इस तरह से इसे कट कर रही है, सो लेट्स से दिस इज द लाइन कटिंग दिस एक्सिस, देन this value which I am marking with red, this is called as c, and the equation of the line is y is equal to mx plus, right? और इनमें से किस में जो भी इंसान यहाँ पर है उसके स्लिप होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो स्लिप होने की टेंडेंसी is maximum for red, राइट? लिख लिया सबने बच्चा लोग? लिख लो। हाँ राहुल बोल। सर जब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो y को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तब c की वैल्यू क्या रहेगी? ऐसा हो सकता है क्या, सोचो। हाँ बच्चा सोचो सोचो सोचो, ऐसा हो सकता है क्या कि y को इंटरसेक्ट ही ना करे कोई भी लाइन? सर नहीं हो सकता। एक पॉइंट पे हो सकता है। we'll discuss it, don't worry, we are coming to it. अगर y के पैरेलल होगी तो भी तो इंटरसेक्ट कर सकती है। we'll see the cases, don't worry, we'll see the cases, right? So अब देखो क्लास, अभी हम ना अलग अलग केसेस लेने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा था, याद है आप लोगों की, आप लोगों को थोड़ा वेट करना है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो अपने आप क्लियर होने लगते हैं जैसे ही आप क्लास के या फिर उस टॉपिक के एंड होने का वेट करते हो, राइट? तो अभी तो हमने टॉपिक शुरू किया है, ध्यान से सुनो, ठीक है? एक्सीलेंट क्वेश्चन है, लेकिन क्लियर हो जाएंगे जैसे आप क्वेश्चन को या इस टॉपिक को एंड तक सुनते हैं। देखो, सो हमारे पास we have this as x axis, this as y axis, ठीक है? हमने एक लाइन की बात की और कहा कि उस लाइन की जो इक्वेशन होगी, that equation will be y is equal to mx plus c, जहां पर m is slope and c is y intercept। अच्छा, एक बात देखो, ये तो हुआ एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, राइट? और इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए सपोज अगर मैं अब इस पर्टिकुलर ग्रीन लाइन के अलावा कुछ और लाइंस बनाता हूं, ठीक है? ध्यान से देखना सब। ये एक, राइट? फिर यहां पर एक, ही दूसरी, then let's make one more, say one which is रेड इन कलर, ठीक है? तो हमने आपकी 4 अलग अलग लाइंस बनाई हैं। इनके लिए हमको इनके स्लोप और इनके इंटरसेप्ट की वैल्यू देखनी है। तो सबसे पहले हम, आप लोगों को याद है हमने tan थीटा की अलग अलग वैल्यू समझी थी लास्ट क्लास में? याद आ रहा है सबको? sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, याद है क्या क्लास? यस सर। ठीक है, तो अब हम उन वैल्यूज को यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। देखो कैसे, यहाँ पर ये जो स्लोप डिफाइन होता है ना m, इसकी वैल्यू होती है tan थीटा। m इज गिवन एज tan थीटा। थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जो ये लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनाती है, दैट इज दिस। ध्यान देना, ठीक है? पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? थीटा, राइट? तो हर लाइन के लिए जो यहाँ पे आपको दिख रही है, थीटा अलग अलग है, और हर लाइन के लिए इस वजह से स्लोप अलग अलग है, बिकॉज स्लोप इज गिवन एज m और tan ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा।
तो अब हमने क्या क्या वैल्यूज पढ़ी हैं याद करो. वी हैव थीटा 0 के लिए, आप ही लोग बताते जाना, ठीक है. 1 मिनट. वील फर्स्ट राइट 30, 45, 60, 90, 120 and 180. Let us take the slope of the line for these values. ठीक है. So yes, ट्राई करो क्या क्या वैल्यूज होंगी बताओ. हम किसकी वैल्यूज जानना चाहते हैं? tan थीटा की. ओके, सो वन बाय वन सब लोग एक एक करके बोलेंगे. आई विल गिव यू ऑप्शंस, राइट. लेट अस स्टार्ट दिस टाइम फ्रॉम कुशल and then we'll one by one go until the last one. ठीक है. और let's start from A. अमीश. हाँ अमीश, tan 0 कितना होता है बच्चा? 0. ठीक है. Next one we have after अमीश कार्तिकेय. हाँ कार्तिकेय बोलो. Sir, 1/√3. Tan 30 is 1/√3. Excellent. Next one we have Mahivesh. हाँ Mahivesh. I think first कुशल. Sir, 1. हाँ चलो ठीक है. हाँ कुशल नेक्स्ट बोलो. √3. √3. ठीक है. How about the next one? We have Shrish. हाँ Shrish. Sir, not defined. Not defined. Veeraj. So minus into √3. Sure. Yes, sir. Tan 0 की वैल्यू बोलो अमीश. सॉरी tan 180 की वैल्यू बोलो अमीश. ओके, एनीबडी एल्स? कार्तिकेय tan 180. Sir, 0. ओके ग्रेट ग्रेट. ऑलराइट, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि tan 0, ध्यान देना tan 0. अच्छा एक और आप लोग ऑब्जर्वेशन पाओगे, अगर आप यहाँ पर ऑल वैल्यूज लोगे ना बिटवीन 180, बिटवीन 90 to 180, मतलब 180 पहुंचने से पहले और 90 के बाद, तो वो सारी वैल्यूज आपको कैसी मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी. कैसी मिलेगी? नेगेटिव. tan की वो वैल्यूज जो 90 से 180 के थीटा के बीच में आती हैं, those values you will find as negative. Whereas वो values जो आप 0 से 90 के बीच में देखोगे, right, you will find those values as positive, right. एक तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर ही रहे हो, बाकी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट सच आंसर. अब मुझे कोई बता सकता है क्या एंगल बिटवीन 0 to 90 क्या होता है? एक्यूट होता है कि ऑब्ट्यूज होता है? लेट अस टेक द आंसर फ्रॉम राहुल. एक्यूट. एक्यूट. ठीक है. तो वो एंगल जो 90 से 180 के बीच में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? Obtuse. यस. इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि जब भी कभी हम किसी एक लाइन का एंगल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? किसी लाइन का एंगल ले रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, अगर वो एंगल ऑब्ट्यूज है, कैसा है? ऑब्ट्यूज, तो उस लाइन के लिए tan थीटा कैसा हो जाएगा? अगर थीटा, आई रिपीट, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है नेगेटिव, तो tan थीटा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. अगर tan थीटा नेगेटिव हो गया तो उस लाइन का स्लोप कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. राइट, क्लियर है क्लास? और ठीक उसी तरह से अगर थीटा एक्यूट हो गया, जो अभी हमने ऊपर देखा, तो tan थीटा कैसा हो जाएगा? बोलो. पॉजिटिव. इसीलिए स्लोप कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव. ये बात क्लियर है क्या सभी को बच्चों लोग? एवरीवन? यस. राइट. अच्छा एक और चीज जब आप गौर करोगे ना कि अगर थीटा बढ़ता है तो tan थीटा भी क्या करता है? इंक्रीज होता है. चेक करो, देखो यहाँ पर 0 है, ठीक है. 1/√3 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहोगे तो कैसे करोगे? 1/√3 कैन बी रिटन एज √3/3, राइट. √3 इज 1.73 डिवाइडेड बाय 3. कितना हो जाना चाहिए? चेक करो, बोलो बिना कैलकुलेटर के. 5. बिना 5. राइट. देखो 5 से 57. 0.57. right, 3 5 is 15, we have 2 here, so it becomes 0.57, है ना. तो देखो क्या हो रहा है, पहले वैल्यू 0 थी, फिर 0.57 हुई, फिर ये वैल्यू 1 हुई, राइट, फिर 1.71 हुई,
इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, ध्यान देना, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है tan थीटा देखो क्या करता जा रहा है, इंक्रीज, पहले 0, फिर 0.57, फिर 1, फिर 1.71। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है tan थीटा क्या करता है, इंक्रीज होता है। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब उस वहां पर स्लोप की भी वैल्यू कैसे करती है, इंक्रीज होती है। ये दो फैक्ट सबको क्लियर हो गए क्या? मैंने दो फैक्ट डिस्कस किया आपके साथ। पहला फैक्ट कि थीटा के एक्यूट या ऑब्ट्यूज होने पर स्लोप पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, 1। दूसरा हमने पॉइंट डिस्कस किया कि जब भी कभी थीटा बढ़ता है तो tan थीटा बढ़ता है, इसलिए स्लोप भी कैसा करता है, बढ़ता है। ये बात क्लियर है क्या सबको बच्चा लोग? यस सर। एवरीवन? हाँ, देयर आर 2 स्टूडेंट्स वांटिंग टू आस्क समथिंग। हाँ बच्चा लोग बोलो। हाँ बोलो। तो 1090 पे क्या हो जाएगा फिर? वो तो नॉट डिफाइन होता है। tan 90 को हम मान के चलते हैं, tan 90 इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए या देखो नॉट डिफाइंड तो हम कह रहे हैं, अगर आप उसको लाइक मैथमेटिकली लिखोगे देन दैट इज इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब विच इज अ वेरी 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 लार्ज नंबर। वेरी लार्ज नंबर एज इन कोई एक ऐसा नंबर जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इतना लार्ज नंबर, राइट? सो आप कहोगे ये कि वो बढ़ते जा रहा है और अल्टीमेटली tan 90 डिग्री पर tan कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। इसीलिए देखो आपको याद है अभी अभी जब आई वाज ड्राइंग द डायग्राम तो मैंने कहा था स्लोप इस जगह पर कैसा होता है, एक वर्टिकल लाइन के लिए स्लोप कैसा होता है, मैक्सिमम। याद आ रहा है क्या? यस सर। तो इसको एज अ नोट सब लोग लिख लो to clear off or ward off any confusions and make it more clear. लिखो everyone, a vertical line has maximum slope. Horizontal line इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू बात कर रहे हैं हम, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल लिखेंगे सब लोग। वर्टिकल लाइन हैज मैक्सिमम स्लोप, हॉरिजॉन्टल लाइन हैज कितना स्लोप होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए? एनीवन? 0। tan ऑफ 0 कितना होता है, 0। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हैज मिनिमम स्लोप, मिनिमम। राइट, इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दैट इज इक्वल टू 0। लिख लो सब लोग, दो नोट लिखो। पहला, दोनों ही इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, राइट? ये सुपर इंपॉर्टेंट बात है। इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू वर्टिकल लाइन हैज मैक्सिमम स्लोप, हॉरिजॉन्टल लाइन हैज मिनिमम स्लोप एंड इक्वल टू 0। हाँ राहुल बच्चा बोलो। सर तो फिर जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तब उसमें क्या करेंगे? एक बार दोबारा से बोलो, आपकी आवाज गूंज रही है बच्चा। सर जब मैथमेटिकली हम लोग वैसे सॉल्व करेंगे उसको तो फिर क्या करेंगे? आ जाएगा, कोई आ जाएगा, उसको हम एप्लीकेशन देखेंगे। हैव पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो, आ रहे हैं उस पर। हाँ, पहले ये लिख लो एवरीवन। ऑलराइट, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पहले इसको लिख लो सभी लोग। ठीक है, लिखा ना सभी ने? एनीबॉडी हु रिमेन्स मे रेज हैंड। बाकी सब लोग हैंड डाउन कर लेंगे। एनीबॉडी हु रिमेन्स मे रेज हैंड। ओके, सो आई थिंक सभी ने लिख लिया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब सपोज, अच्छा राहुल, इट्स बेटर जो आपने सवाल पूछा, राइट? अभी rather than answering that question मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट समझो, राइट? और अल्टीमेटली जब ये टॉपिक आपकी मैथ्स क्लास में कवर होता है वहां पर उसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस समझना। व्हाई एम आई टेकिंग दिस? बिकॉज आपका सवाल है, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन वंस अगेन बच्चा, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एवरीवन? यस राहुल बच्चा बोलो। सर जब मैथमेटिकली उसको लिखेंगे तो फिर कैसे सॉल्व करना है?
उसका सवाल, उसका जवाब तब आएगा जब हम tan का ग्राफ देखेंगे. देयर इज सम टाइम इन दैट. उस पर आ रहे हैं, राइट? उस पे हम आ रहे हैं. वो अपने आप खुद जवाब दोगे, मुझे शायद जवाब देने की जरूरत ही ना पड़े. यू विल बी टेलिंग मी दी आंसर, राइट? ऑलराइट, सो हम उस पे आते हैं, ठीक है? राइट, पहले ये देखेंगे सभी लोग यहाँ पर स्क्रीन पर. जस्ट अ मिनट क्लास. ऑलराइट, सो क्लास एज आई वाज सेइंग, जो आप राहुल जो आपने सवाल पूछा है दैट विल बिकम क्लियर. बट पहले मैं आप लोगों से कुछ और जानकारी चाहता हूँ, आप सीखो. देखो कौन सी जानकारी. हैव अ लुक. हमने अभी 4 लाइंस बनाई है, ठीक है, ऑन द स्क्रीन. आपको मुझे एक एक करके बताना है कि इन चारों लाइंस के लिए स्लोप और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट? सो m एंड c पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ यू. सो लेट अस स्टार्ट दिस टाइम फ्रॉम महिवेश. हाँ महिवेश, बताओ. ये जो यहाँ पर ब्लू लाइन है, राइट, द ब्लू लाइन, इसके लिए बताओ बच्चा स्लोप पॉजिटिव. सबसे पहले बताओ थीटा कैसा है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? Sir, theta is acute and it will be positive. क्या पॉजिटिव? Sir, slope. Slope will be positive, right? What about y-intercept? Positive. Positive. Nobody else has to speak, ठीक है? मतलब आपको किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना है. Everybody has to have their own opinion, right? हाँ महिवेश, क्यों पॉजिटिव, नेगेटिव क्यों नहीं? Sir, because वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, नीचे नहीं है. Because all the values above x-axis, y values above x-axis are positive. Excellent महिवेश बच्चा, ठीक है? So इस y के लिए c भी पॉजिटिव होगा और m भी कैसा होगा, पॉजिटिव, राइट? Let us take next. Positive. Right, absolutely correct बच्चा. Now we'll take next one from, आगे लेते हैं आंसर फ्रॉम कार्तिकेय. हाँ कार्तिकेय, बताओ इस वाली लाइन के लिए, द ब्राउन स्लाइडिंग लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. आप लोग जानते हैं शायद, दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स. 1 2 3 एंड 4. ये अपने पास लिख लीजिए सभी लोग, ठीक है? हाँ कार्तिकेय बच्चा, बोलो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए m की और c की स्लोप विल बी. सर m नेगेटिव. अच्छा सर क्योंकि ऑब्ट्यूज. हाँ कार्तिकेय. सर m will be negative because the angle made by horizontal will be obtuse. राइट, ये जो एंगल है, देखो सभी लोग, जिसको यहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है, राइट, दिस एंगल क्योंकि ये 90 से बड़ा है, इसलिए स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव. उसको तो हमने यहाँ पे देखा भी, राइट? हाँ बोलो बच्चा. And the value of c will be positive because it is in the positive y-axis. Because this intercept is made on the positive y-axis, इसीलिए c हो जाएगा greater than 0, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ देखना ग्रीन वाली लाइन के लिए. लेट कुशल से. हाँ कुशल, इस ग्रीन लाइन के लिए मुझे बताओ स्लोप कैसा है? नेगेटिव होना चाहिए ना स्लोप कुशल इसके लिए? नहीं, पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्यूट एंगल बना रहा है. बिकॉज ये एक्यूट एंगल बना रहा है. एब्सोल्युटली करेक्ट. अच्छा, व्हाट अबाउट सी बच्चा, सी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा. क्यों? देखो यहाँ तो ये पॉजिटिव एक्सिस पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस में. बट सी वाई इंटरसेप्ट है. हाँ, क्योंकि सी वाई इंटरसेप्ट है, इसलिए यहाँ पर सी यानी कि वाई इंटरसेप्ट कैसा होगा, नेगेटिव. एक्सीलेंट बच्चा, ठीक है? लेट अस टेक नाउ द आंसर फ्रॉम राहुल. हाँ राहुल, बताओ इस रेड वाली लाइन के लिए m और c की वैल्यूज क्या क्या होंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, किस रेंज में लाई करेगा? यस राहुल बच्चा बोलो. m की वैल्यू नेगेटिव रहेगी और c की भी नेगेटिव रहेगी. m की वैल्यू नेगेटिव क्यों है बच्चा? तो ऑब्ट्यूज एंगल है इसलिए. कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज है, कहाँ का? देखो ये एंगल तो, ये वाला एंगल तो एक्यूट है. सर दूसरे साइड वाला देखेंगे ना. दूसरे साइड वाला क्यों देखेंगे, ये बताओ सबको. देखो जैसे अगर कोई बच्चा ऐसा काम कर सकता है, वो अगर चाहे तो he'll draw x axis ऐसा करके, ठीक है, और फिर
एक्स एक्सिस बनाने के बाद वो लाइन ड्रॉ करेगा ऐसे करके और बोलेगा सर आपने तो कहा है कि अगर एंगल एक्यूट होता है तो हम उस एंगल को उस स्लोप को पॉजिटिव ले सकते हैं। तो देखो सर ये एंगल तो एक्यूट है ना सर, क्या बोलोगे उस बच्चे को बताओ? ऐसे तो लाइन का स्लोप पॉजिटिव हो जाना चाहिए। सर पर हमेशा राइट से लेफ्ट में जाता है। आपको ये बताना पड़ेगा कि बच्चा हम हर बार जिस थीटा की बात कर रहे हैं ये थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। तो यहाँ पर आप लोग अलग से एक नोट लिख के क्या स्पेसिफाई करेंगे कि व्हेन आई एम राइटिंग स्लोप इज इक्वल टू, व्हेन आई एम राइटिंग स्लोप इज इक्वल टू tan theta, here theta is angle made by the line। सब लोग लिखो यहाँ पर angle made by the line, angle made by the line with positive x axis, with positive x axis। लिखो इसको everyone। लिख लिया सबने? ठीक है, तो राहुल एब्सोल्युटली करेक्ट। आपका पहला जवाब क्या कि दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ an angle which is greater than 90 and therefore that angle is obtuse and therefore slope is negative। अच्छा, what about C बच्चा, राहुल बच्चा, C कैसा होगा इस रेड लाइन के लिए? तो C भी नेगेटिव रहेगा। C भी नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव क्यों रहेगा, पॉजिटिव क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि y के नेगेटिव साइड में आ रहा है वो एक्स बिकॉज एक्सिस के नीचे। हाँ, बिकॉज जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो नेगेटिव y की तरफ बन रहा है। अच्छा, तब और फाइनल प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव। क्या क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो बच्चा। सर फाइनल प्रोडक्ट जो रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट एज इन या सर y जो रहेगा। हाँ बच्चा बोलो बोलो, पूछो पूछो बच्चा। जैसे y इक्वल टू mx प्लस सी है तो m की और c की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर y पॉजिटिव हो जाएगा ना। ऐसे कैसे? देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, तो m और c का प्रोडक्ट थोड़ी ले रहे हो, m और x का प्रोडक्ट ले रहे हो ना। क्लियर हुआ बच्चा? यस सर। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं। अगर प्रोडक्ट ले रहे होते m और c का तो आपकी बात शायद सही हो जाती कि m भी नेगेटिव c भी नेगेटिव तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाता पॉजिटिव, लेकिन यहाँ वो नहीं है, राइट? यहाँ तो m और x का प्रोडक्ट है, राइट? क्लियर हो रहा है बच्चा? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्लास, हमने अभी जो यहाँ देखा ना इसका इम्प्लीकेशन बहुत बहुत ह्यूज है, बहुत वास्ट इम्पैक्ट है ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस जो आप लोग पढ़ने वाले हो, राइट? बट बिफोर वी मूव ऑन टू एनी अदर पॉइंट, आई एम टेकिंग समथिंग अगेन एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। लिखो सभी लोग, हेडिंग दो, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जो भी मैं आप लोगों को अभी लिखा रहा हूँ इसके ऊपर आपका एक टेस्ट होने वाला है, ठीक है? तो उसके लिए तैयार रहेंगे सब लोग, कभी भी हो सकता है, राइट? इसीलिए घर पर अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करो, जो भी मैं करा रहा हूँ उसको घर पर खुद से एक बार प्रैक्टिस करनी है, राइट? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, हेडिंग दो सब लोग, intercept form of a straight line। It is given that intercept form, right? कोई एक ऐसी लाइन है, सपोज वो y एक्सिस को कट कर रही है, यहाँ पर ये y एक्सिस, राइट? दिस इज x एक्सिस, ये पॉइंट है ओरिजिन 0,0। यहाँ पर ये y एक्सिस को कट करती है एट y इज इक्वल टू b और यहाँ x एक्सिस को कट करती है एट x इज इक्वल टू a। तो इसकी इक्वेशन हो जाती है बच्चा लोग x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। ये लिख लो सब लोग अपने पास।
x by a plus y by b equal to 1. अब इसके लिए आप आई एम लीविंग यू ऑल विद अ स्मॉल होमवर्क. एक स्मॉल होमवर्क है आप लोगों के लिए, खुद से ट्राई करना और वेरीफाई भी करना क्या कि जो कह रहे हो वो कितना सही है, राइट? और मुझे याद दिलाना कि ये होमवर्क था, राइट, सो दैट वी कैन कंटिन्यू अकॉर्डिंगली, राइट? x इक्वल टू क्या लिखा है? x is equal to a, y is equal to b, then the equation is given as x by a plus y by b is equal to 1. क्लियर है बच्चा? यस सर. ठीक है, लिखो यहाँ पर. अगर सपोज ये इक्वेशन है तो, और यहाँ पर हमारे पास दिया है दिस पॉइंट इज 5,0, दिस पॉइंट इज 0,10, राइट? उसी तरह से एक और लाइन है ओवर हियर, ऐसा कुछ, राइट? ये जिस पॉइंट पे कट कर रही है दैट पॉइंट इज 2,0, हियर दिस पॉइंट इज 0,-10. ठीक है, तो आपको एक और इक्वेशन देते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है, एक और इक्वेशन देते हैं, ये वाली लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है. ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ इट ऑफ सम अदर कलर. ठीक है, तो आपको इस तरह से अलग अलग लाइंस दी गई हैं, राइट? और इस लाइन के लिए आपके पास पॉइंट्स हैं -5,0, राइट, एंड दिस पॉइंट इज 0,2, राइट? अब आपको इन लाइंस जहां से भी लाइन पास कर रही है, एंड दिस पॉइंट इज ओरिजिन. ठीक है, तो आपको पर्पल लाइन के लिए, राइट, मरून लाइन के लिए, पिंक लाइन के लिए और येलो लाइन के लिए इक्वेशंस बतानी है वाया दिस फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन इन द क्वेश्चन. इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करना है. ठीक है, ऑल्दो देयर माइट बी अदर फॉर्मूलाज, बट आपको इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करना है. और आप अदर फॉर्मूला से चाहो जो आपने पहले पढ़े हैं, वेरीफाई करके देखना और मुझे बताना व्हाट इज योर आंसर. तो ये आपका आज का वो असाइनमेंट है जो आपको सॉल्व करना है, इसको स्कैन करना है और गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है. ठीक है, सो यू हैव टू डू इट टुडे और लेटेस्ट बाय टुमारो, राइट, बिफोर 7 PM, राइट, बिफोर टुमारोज 7 PM. Am I clear, everyone? यस सर. सिंपल सा होमवर्क है, इसको करना है, राइट? एंड बी रेडी. आप लोगों के लिए जल्द एक टेस्ट होने वाला है, राइट? इट कैन हैपन एनी डे. तो इसीलिए आप लोगों ने अब तक जो भी पढ़ा है वेक्टर्स में, मैथमेटिकल टूल्स में, राइट, उन सारे का इतना स्ट्रॉन्ग रिविजन रखो कि किसी भी दिन जब मैं सरप्राइज टेस्ट ले लूं तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएं. ठीक है, एवरीवन रेडी फॉर इट? सर, हाँ हाँ, बोलो बोलो बच्चा. सर मैथमेटिक टूल्स के क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें? मैथमेटिकल टूल्स के लिए जितना मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, राइट, उसको अच्छे से रिवाइज करो. Soon I'll be sharing an assignment with you all so that you can work on those questions, right? Mathematical tools के लिए एक रास्ता है, HC Verma में you will find one of the chapters, I think it's second chapter, have a look. It tells you about different mathematical tools, but although it will not cover in detail the way we are doing it here, right? इसीलिए I'll be giving you all, I'll be sharing with you all the असाइनमेंट ताकि वी कैन गो अहेड विद द प्रैक्टिस. लेकिन तब तक के लिए जो आपको दिया गया है क्लास नोट्स, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो. रही बात आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट, नेक्स्ट क्लैरिटी क्लास की, जो वी विल बी कंडक्टिंग ऑन वन ऑफ द डेज, आई विल इन्फॉर्म 1 day बिफोर, आपको एक रात पहले या इवनिंग तक आई ट्राई टू इन्फॉर्म, राइट? ठीक है बच्चों लोग, तब तक के लिए डू नॉट स्टॉप. आप लोग ने जो वेक्टर्स सॉल्व करना शुरू किया है लेवल 1, लेवल 2, राइट, जो हमने कल क्लास में क्वेश्चंस देखे थे, है ना, जो डाउट आपकी क्लैरिटी क्लास में जो क्वेश्चंस देखे थे उनको अच्छे से पढ़ लेना. कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे अगली प्रैक्टिस क्लास में फिर से पूछ लेना, राइट? नो वरीज. सो दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू पुट एन एंड टू द क्लास फॉर द डे.
about the clarity class, I'll repeat, there are two announcements for you all. First is that you can have your test at any day. It will be a surprise test, right? So you should be ready for the test, right? This is point number 1. And you have point number 2 कि आपका सरप्राइज टेस्ट तो कभी भी हो सकता है. दूसरा, जो भी आपने अपने पास अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन अच्छे से करके रखो, और कल बाय 7 o'clock मुझे ये सारे असाइनमेंट्स भेजिए. और जो आप अभी रेगुलरली कर रहे हो, क्या कि हर दिन शाम 7 बजे तक आपने जितना भी किया है काम, राइट, यानी कि कल 7 बजे के बाद से लेकर आज 7 बजे के पहले तक घर पर अगर आपने फिजिक्स के 5 क्वेश्चन भी बनाए हैं, राइट, तो उन 5 क्वेश्चन को आपको आज से गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है. मैंने आप लोगों को प्रोसीजर बता दिया है कि कैसे क्लासरूम ज्वाइन करना है. अब जैसे ही आप गूगल क्लासरूम यूज करना शुरू करोगे, यू विल गेट द डायरेक्टिव्स, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा. और नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना, राइट? क्लियर है एवरीवन? क्लास? Yes, sir. All right, so get going everyone, right? All the best and take care everyone. Let's meet day after tomorrow, right, where we'll be going to next part of the mathematical tools, है ना? Therefore we'll be discussing some concepts like differentiation, integration, etc. So वो समझने से पहले जो अभी मैंने बताया इसका क्लियर होना बहुत जरूरी है, right? All right class, so please make sure you are doing continuous revision and submitting me your questions from DC Pandey for the chapter vectors. आपका असाइनमेंट जल्द आ रहा है. I'll repeat, आपका असाइनमेंट जल्द आ रहा है. आप अपने DC पांडे के क्वेश्चंस को सॉल्व रखना जारी रखिए. एंड थर्ड थिंग, आपका कभी भी टेस्ट लिया जा सकता है, राइट? सो स्टे प्रिपेयर्ड. ऑलराइट क्लास, थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir. Thank you everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you all. Thank you so much.